अमेरिकन डॉलर एक टाइम बॉम्ब है। आप जानते हैं 1923 में जब जर्मनी पहला वर्ल्ड वॉर हार गया तो जर्मन गवर्नमेंट को $33 बिलियन का डैमेज देना पड़ा। 1923 was disastrous for Germany. In that year, French and Belgian troops entered the Ruhr to force the Germans to pay up. The Allies presented the London Schedule of Payment, the final war reparations bill which they expected that Germany would pay. The total, which the Germans had negotiated down from previous offers, was 132 billion gold marks. तो आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसा छापना शुरू कर दिया और जब उन्होंने पैसा छापना शुरू किया तो जर्मनी ने एक ऐसी इकोनॉमिक डरावनी कहानी शुरू की जिसे वे एक सदी तक याद रखेंगे। जर्मन करेंसी इतनी बेकार हो गई, इतनी बेकार कि 1921 में $1 इज इक्वल टू 17 जर्मन मार्क के बराबर थी। लेकिन 1924 के आखिरी तक $1 इज इक्वल टू 4.2 ट्रिलियन जर्मन मार्क के बराबर थी। Money became so worthless that people literally won case for fire because the firewood was more valuable than the currency they were winning. Because of the enormous reparation costs to be paid in gold, there was no longer any backing for the mark. As the mark lost value, the government printed more money. The German middle class was the worst hit. People would be paid in the morning and have suitcasefuls of banknotes, and they would have to then run to the shops because at the time when they bought their goods, their food, the prices would have risen. A loaf of bread cost 2 billion marks. A pound of butter cost 2 trillion marks. Unemployment, hunger, and a hopeless future distinguished the Weimar Republic to the German people. और यही सेम बात जिम्बाब्वे में हुई जब उन्होंने अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए पैसे छापे। जिम्बाब्वे की हाइपर इन्फ्लेशन 89.76 ट्रिलियन % पर पहुंच गई। यस, 89.76 ट्रिलियन %, यानी 89.7 के बाद 20. The announcement by the central bank that it has launched 3 new additional notes, one for 250,000, 500,000 and 750,000. The country's economy has now become one of the world's worst. Food production and agricultural exports dropped drastically. Now the economy is blighted by hyperinflation and joblessness. Difficult to get basic food commodities. Many people are having to go into neighboring countries to buy flour, sugar and even cooking oil. Life is tough in Zimbabwe. Bread lines are a common sight. और इसी तरह जब वेनेजुएला ने पैसे छापे तो हाइपर इन्फ्लेशन 1 बिलियन % तक पहुंच गया। So what does history tell us? हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी कोई देश इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए बहुत सारा पैसा छापता है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमिक फेयर का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह बात पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। लेकिन आप जानते हैं अकेले अप्रैल 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने $3 ट्रिलियन बनाए और यहीं पर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि डॉलर एक टिक टिक करता टाइम बम बन सकता है। क्यों? क्योंकि आज यूएस का लोन $36 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो इंडिया, चाइना, रशिया, यूके एंड जापान की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। 36 trillion dollars. That's the debt. 36 trillion. It's a ticking time bomb, and according to the IMF, it is ticking louder than ever. The International Monetary Fund, it has issued a direct warning. Without exaggeration, American debt is a ticking time bomb. $25 trillion of new debt on top of the $36.2 trillion we have now, which is already the most debt of any country in the world. That will detonate unless we take serious, responsible action. लेकिन किसी तरह क्या आपको एहसास है कि यूएस में कोई भी हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है? यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं गिरी है और यूनाइटेड स्टेट्स कुछ भी करे वह आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड्स, अमेरिका डॉलर एक टिक टिक करता टाइम बम हो सकता है जो एक दिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खत्म कर सकता है। सो द क्वेश्चन इज, इतना पैसा बनाने के बाद भी अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन का सामना क्यों नहीं कर रहा है? क्या अमेरिका बिना किसी चिंता के बस पैसा बना सकता है? और इस पागलपन के बावजूद दुनिया यूएस डॉलर पर भरोसा कैसे कर रही है? As of now, as we have seen, यूनाइटेड स्टेट्स पर $36 ट्रिलियन का लोन है, जिसमें से सिर्फ $1 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट रेट पेमेंट पे जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली केस स्टडी में बात की थी, वे 1960 से अब तक 70 बार अपनी लोन की लिमिट पार कर चुके हैं। असल में 2020 और 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ने लगभग $3 ट्रिलियन बनाए। Treasury Secretary Janet Yellen said Thursday the U.S. hit the $31.4 trillion borrowing cap set by Congress. With the potential for U.S. economic catastrophe, raising the debt ceiling has historically been a routine and bipartisan act. The debt ceiling has been revised 78 times since 1960. This is about economic stability versus economic chaos.
सो हाउ डू अमेरिका यूज देयर डॉलर पावर टू क्रिएट $1 ट्रिलियन आउट ऑफ थिन एयर? खैर डॉलर की मशीन ना कुछ ऐसे काम करती है। पहली स्टेप, फेडरल रिजर्व जो है वो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। अब वो बॉन्ड खरीदने के लिए $500 बिलियन का न्यू मनी बनाता है। अब ध्यान रहे यह पैसा सिटीजन्स को नहीं दिया जाता है, ना ही इसे फिजिकली प्रिंट किया जाता है, यह पैसा डिजिटली बनाया जाता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, फेडरल रिजर्व कमर्शियल बैंकों से मान लीजिए 1% इंटरेस्ट पर 500 बिलियन के 10 ईयर के बॉन्ड्स खरीदता है। तो बैंक ए ने $115 बिलियन के बॉन्ड बेचे, बैंक बी ने $200 बिलियन के बॉन्ड बेचे और बैंक सी ने $115 बिलियन के बॉन्ड बेचे। तो फेड इन बैंकों के सभी $500 बिलियन के नए रिजर्व क्रेडिट करता है, जो सभी डिजिटली बनाए गए हैं। फिर आता है स्टेप नंबर 3। अब जब बैंकों के पास $500 बिलियन का नया रिजर्व है तो वो बिजनेस और कंज्यूमर को और पैसा उधार देना शुरू कर देते हैं। तो बैंक ए बिजनेस को $50 बिलियन का उधार देता है और बैंक बी मार्गोस और कार्लोस के लिए $100 बिलियन का उधार देता है। एंड दिस सडन इन्फ्लक्स ऑफ मनी अलाउ बैंक टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम 5% to 3%। क्यों? क्योंकि मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा है। और फिर आता है स्टेप नंबर 4, जहाँ से इकोनॉमिक साइकिल चलना शुरू होती है। तो इस साइकिल में क्या होता है? एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी डेट। डेवलपर घर बनाने के लिए और पैसा उधार लेंगे, इसलिए जब वे घर बनाते हैं तो वे वर्कर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस और लेबर को काम पर रखेंगे। इसी तरह जैसे जैसे घर खरीदने वालों को लोन मिलते रहेंगे, वे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वे फर्नीचर खरीदेंगे और वे दूसरी चीजें भी खरीदेंगे, जिससे इकोनॉमिक साइकिल चलती रहेगी। और आखिरकार ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा लोग कमाएंगे और ज्यादा लोग खर्च करेंगे। और जब खर्च बढ़ता है तो एसेट एप्रिसिएशन होता है। और यहीं पर स्टेप नंबर 5 काम आता है। जैसे जैसे रियल एस्टेट और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, स्टॉक की कीमतें बढ़ती है, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती है और सबसे जरूरी बात, सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ने लगता है। और ठीक इसी तरह यूएस सरकार अपना बोझ कम करने और इकोनॉमी फ्लाईव्हील को चालू रखने के लिए डिजिटल मनी का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर जिम्बाब्वे, जर्मनी, वेनेजुएला, तुर्की इन सभी को मनी प्रिंट के बाद हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, तो यूएस को अभी तक हाइपर इन्फ्लेशन का सामना क्यों नहीं करना पड़ा? वेल, एज इट टर्न आउट, जब भी यूएस मुश्किल में होता है तो ग्लोबल मार्केट किसी न किसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बचाने के लिए एक साथ आ जाता है। सुनने में चौंकाने वाला लगता है, राइट? खैर चलिए 2021 में वापस चलते हैं और आपको कहानी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और जब 2020 में पेंडेमिक आया ना, तो अमेरिकन की इकोनॉमी रुक गई थी। इसीलिए यूएस सरकार ने 2 इयर्स में $3 ट्रिलियन डाले। और जैसे ही ऐसा हुआ, इसमें 3 चीजें हुई। सबसे पहले अमेरिका के पास ज्यादा पैसा था, बिजनेस के पास ज्यादा पैसा था और कंज्यूमर ने ज्यादा खर्च किया और कंपनी बढ़ने लगी। आखिरकार इकोनॉमिक साइकिल घूमने लगी और इकोनॉमी बढ़ने लगी। दूसरी बात, यूएस डॉलर की कीमत कम हुई। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि जब यूएस डॉलर की कीमत कम होती है तो ग्लोबल मार्केट में यूएस का सामान और ऑयल सस्ता हो जाता है। इसीलिए अमेरिका एक्सपोर्ट्स और ऑयल की ग्लोबल डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर डॉलर कमजोर होता है तो एवोकाडो दुनिया भर में सस्ता हो जाता है। और जब एवोकाडो सस्ता हो जाता है तो क्या होता है? देश ज्यादा एवोकाडो इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व में डॉलर रखते ही हैं। और ऑयल, गोल्ड, वीट जैसे ज्यादातर ग्लोबल ट्रेड अभी भी डॉलर में ही होते हैं। इसीलिए जब डॉलर गिरता है तो सभी को डॉलर की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि डिमांड जीरो से वापस आ जाती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए सभी को ऑयल की जरूरत होती है, क्योंकि ऑयल आखिरकार किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसीलिए 2021 में जब डॉलर की कीमत कम हुई तो ऑयल की डिमांड बढ़ गई और इस डिमांड ने डॉलर की वैल्यू को वापस पटरी पर ला दिया और ये बहुत ही तेजी से हुआ। और फिर 2022 में अमेरिका के लिए हालत बेहतर बनाने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गई। और जब वॉर छिड़ जाता है तो क्या होता है कि दुनिया घबरा जाती है। Ukraine's capital city of Kyiv is under attack. Tensions between Russia and the West are growing rapidly. President Biden has ordered several thousand U.S. troops to take up new positions in Eastern Europe. Attacks on Ukraine has clearly rattled the global markets as well, sending stocks tumbling. Big move we've seen is in the price of oil. Crude oil prices now close to $100 a barrel. Energy prices and volatility would likely spike even higher in the European Union, which relies, as we know, heavily on Russia. जब दुनिया घबरा गई तो क्या होता है? इन्वेस्टर ने दुनिया भर से एसेट बेचना शुरू कर दिए और अपना पैसा यूएस मार्केट में लगाने के लिए वापस यूनाइटेड स्टेट्स भाग गए। Why? Because the dollar is the safest asset in the world. और 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। जब यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर डाले तो डॉलर की वैल्यू गिर गई, लेकिन किसी तरह दुनिया ने संभाल लिया और डॉलर की डिमांड फिर से बढ़ गई। और आखिर में यूरोप के पास कर्ज का क्राइसिस आ गया, जिससे इन्वेस्टर फिर से घबरा गए और वे वापस यूएस भाग गए और अपना पैसा यूएस डॉलर में लगा दिया। Why? Because whenever there are crisis, the US dollar is the safest asset to invest in. तो इन सारी अफरा तफरी के बाद जब डॉलर की डिमांड फिर से बढ़ जाती है तो फेडरल रिजर्व चुपचाप दखल देता है और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है और हालात को ठंडा रखने के लिए मनी सप्लाई को टाइट कर देता है। सो इफ यू लुक एट द पैटर्न, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर गाइस?
जब यूएस एक इकोनॉमिक क्राइसिस में होता है जहां उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है तो वे सचमुच खुद को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए पैसा बनाते हैं। जब वे पैसा बनाते हैं तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जब डॉलर की वैल्यू गिरती है और क्योंकि दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है तो उन्हें और ऑयल, एवोकाडो और गोल्ड की जरूरत होती है। तो जब यह ट्रेड बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की वैल्यू में यह गिरावट फिर से वापस आ जाती है, जिससे डॉलर अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर वापस आ जाता है। और किसी तरह हर बार जब यूनाइटेड स्टेट्स बिलियंस एंड ट्रिलियंस और डॉलर्स बनाने के लिए क्वांटिटेटिव आइसिंग का इस्तेमाल करता है, हालांकि शॉर्ट टर्म पे डॉलर की जो वैल्यू है ना वो गिर ही जाती है। कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, किसी वजह से इन्वेस्टर यूएस वापस आ जाते हैं और अपना पैसा डॉलर में लगा देते हैं। और जब इन्वेस्टर यूएस मार्केट में बिलियंस एंड ट्रिलियंस के कैपिटल डालते हैं और यूएस डॉलर खरीदते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और डॉलर वापस पटरी पर आ जाता है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि दुनिया का ट्रेड डॉलर में होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर कोई यूएस डॉलर पर भरोसा करता है। So friends, do you know that the real power does not lie with the US Army and Silicon Valley? It is the US dollar, and more importantly, it is close to the trust that the world places in the US dollar. क्योंकि अगर तुर्की मनी प्रिंट करना शुरू कर दे तो कोई भी लीरा नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी तुर्किश लीरा में तेल नहीं कर देता और कोई भी तुर्किश लीरा पर भरोसा नहीं करता। इसी तरह अगर वेनेजुएला भी पैसा छापना शुरू कर दे तो कोई भी वेनेजुएला की करेंसी पर भरोसा नहीं करेगा, भले ही आपके पास बिलियंस एंड ट्रिलियंस की वेनेजुएला करेंसी हो। कोई भी आपको वेनेजुएला की करेंसी के बदले ऑयल नहीं देगा। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जर्मनी है, तुर्की है या वेनेजुएला। अगर वे पैसा छापना शुरू कर देते हैं तो भले ही आपके पास इन देशों की बिलियंस एंड ट्रिलियंस की करेंसी हो, यह सब बेकार हो जाएगी क्योंकि कोई भी आपको इन करेंसी के बदले ऑयल नहीं बेचेगा। इसीलिए डॉलर और डॉलर पर भरोसा यूनाइटेड स्टेट्स के पास अब तक की सबसे ताकतवर प्रॉपर्टी है। सो द गिस्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट जब तक दुनिया डॉलर में ऑयल खरीदती है, जब तक क्राइसिस के समय डॉलर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, जब तक कोई दूसरी करेंसी इसे चैलेंज देने के लिए उठती नहीं है, यूएस डॉलर कभी नहीं गिरेगा। तो 21st सेंचुरी में दुनिया को जिस ट्रिलियंस डॉलर का सवाल का जवाब देना है वह यह है कि अगली सुपर पावर कौन होगी, कौन सी करेंसी अगली सबसे रिलायबल करेंसी बनेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर यूएस डॉलर पर भरोसा खत्म हो जाता है तो दुनिया को बैकअप के तौर पर एक ऐसी करेंसी और एक ऐसा सुपर पावर की जरूरत होगी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी दुनिया के पास कोई भी बैकअप नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ चीन के बारे में सोच सकते हैं और चीन अभी दुनिया का सबसे रिलायबल देश नहीं है। और यह हमें सबसे जरूरी सबक सिखाता है कि आपको पता है कि चीन अगली बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद सिर्फ इसीलिए कोई चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। चीन खरबों डॉलर की वैल्यू खो रहा है एंड द यूनाइटेड स्टेट्स will just because the world touched the dollar and they are able to make the trillions of dollars and get away with $36 trillion in debt.